बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ प्रोनाउन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि नाउन जो होती है, नाउन किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन वो होता है जो कि हम नाउन के रिप्लेसमेंट में मतलब सब्स्टिट्यूट करने के लिए नाउन को हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और इसका मेन पर्पस ये भी होता है कि जब हम रेपिटिशन को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं कि एक ही बार जब हम एक ही नाम को रिपीट करते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और उस सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट को हम प्रोनाउन बोलते हैं। So it is very easy concept whenever we make use of a word which is we use for the replacement of noun, that is called pronoun. And if we talk about the examples of pronoun, that includes he, she, it, they, we, and there are a bundle of examples of pronoun. So let's talk about the example in a sentence. इंस्टेड ऑफ नाउन वी मेक यूज़ ऑफ प्रोनाउन। ओके, जब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे इट वुड बी मोर इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जॉन वेंट टू द स्टोर एंड जॉन बॉट एप्पल्स। So over here we can see John and John, repetition of the same word. So avoiding John, we will make use of substitution of the John, that is pronoun. और वो क्या है? जॉन का जो रिप्लेसमेंट में आएगा वो होगा ही, बिकॉज़ हम एक सिंगुलर मेल पर्सन की बात कर रहे हैं। तो जॉन जो है वो बॉय है, तो इसलिए हम ही का यूज़ करेंगे जॉन के रिप्लेसमेंट में, ताकि हम रेपिटिशन को भी अवॉइड कर सकें और मोर क्लैरिटी, मोर कंसाइज कम्युनिकेशन हम सकें। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की टाइप्स को, विच आर वेरी इजी। और प्रोनाउन जो है वो बेसिकली बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट वी हैव टू टेक दी कॉन्सेप्ट एंड देन इट इज़ वेरी इजी। फर्स्ट जो टाइप है डैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास जो हैं वो आ जाते हैं यू, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवरसेल्फ। बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन के तौर पे नाउन की। जैसे कि आई, वी, यू, these are the example of personal pronoun. जैसे if I would say John is a good boy and John is a hardworking boy. So avoiding John and John, we will say John is a good boy and he is very hardworking. So we have substitute John by he, because he is singular as well as he is a male person. So we know the gender, and that's why we are using over here he. Let's take another example of personal pronoun as Ali, Shebaz, Shakil are boys. Ali, Shebaz, Shakil are hardworking. Ali, Shebaz, Shakil are playing outside of the room. So over here you can see I'm again and again repetitively taking the name of those boys. So if I replace these boys with the pronoun they, because we know there are three boys over there, so we know the gender obviously, as thrice are boys, but we are substituting over here three names with the substitute of pronoun, and that is called they. Now let's talk about the demonstrative pronoun, which is very easy. And basically in demonstrative pronoun, we are pointing out something or some people or some place. Basically, we are pointing out something. Let's talk about the example of demonstrative pronoun. Basically, this apple is fresh. Over here, we are using this as a demonstrative pronoun because we are pointing out the fresh apple. So the next example is that car is old. Over here you can see the picture, the person is pointing out towards the car, that car is old. In the third example, these flowers are pretty. Now again we are pointing out towards flowers. So whenever we are specifically pointing out something, some people, some place, anything, that would mean it is demonstrative pronoun we are using. Last example we have those birds are high.
Now those is specifying the pointing out the birds and that are very high on the sky. So this, that, these, those all are considered as demonstrative pronoun because we use these words to point out something. The another type of pronoun is interrogative pronoun, and it is seriously very easy type of pronoun because in interrogative pronoun we ask question about anything. For example, who, whom, who is at the door. Over here, who is as considered as interrogative pronoun. Whose keys are these? What are you thinking? Which one do want, or which one do you want? So over here, who, whom, whose, what, which all are used as interrogative pronoun because these we use make these words to ask any question. आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा बिकॉज आपको पता है जब हम टेंसेस में भी इंटेरोगेटिव टेंसेस करते हैं तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है. क्वेश्चन मार्क ही शो ऑफ करता है कि यहाँ पर हम किसी सवाल का सवाल पूछ रहे हैं. तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा. Now let's talk about the another type of pronoun, which is relative pronoun. Relative is basically showing us the relationship with the noun. So over here we can take the example who, whom, which, that, whose. These words are considered as relative pronoun. Basically अब मैं आपको इसका use बताऊंगी कैसे होगा. Who, whom. अब the girl who won. अब हम यहाँ पर हम बता रहे हैं एक गर्ल के बारे में जिक्र कर रहे हैं. The girl who जो के जीत गई. अब यहाँ पे दी गर्ल जो है वो नाउन है और हम उसको उसका रिलेशन शो करें कि जो जीत गई. गर्ल का रिलेशन जीतने से शो करें, उसे रिलेट करें एक दूसरे के साथ. अब द बुक विच आई रेड. ठीक है, अब द बुक जो है वो बेसिकली बुक नाउन के तौर पे यूज़ हुई है. विच अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है कि जिसे मैं पढ़ता हूँ. अब एक इंसान का रिलेशनशिप बुक के साथ है जिसे वो पढ़ता है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द कार डैट ब्रोक डाउन. अब यहाँ पर जो द कार है वो क्या है, नाउन, और डैट क्या है, वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है बिकॉज वो उसका रिलेशनशिप शो कर रहा है टूटने से. द लास्ट एग्जाम्पल इज द मैन हुज डॉग बार्क्ड. अब यहाँ पर जो दी मैन है वो नाउन है और हुज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है बिकॉज वो रिलेशनशिप नाउन का उसके डॉग के साथ शो ऑफ कर रहा है. ठीक है, तो जो हुज है यहाँ पर वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है. Now let's talk about the another type of pronoun which is reflexive pronoun. In reflexive pronoun हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो अपना एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है खुद से जो परफॉर्म कर रहा है उसको शो ऑफ करेगा. ठीक है, अब जिस तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है हमारे पास जो है वो वर्ड्स जो यूज़ होंगे उसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, आर सेल्फ का यूज़ होगा. इसमें मैं आपको टिप एंड ट्रिक देना चाहूँगी कि जो सेल्फ है इसमें सेल्फ का यूज़ आएगा. अब जो भी वर्ड होगा एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके साथ सेल्फ का यूज़ किया जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जांपल पढ़ते हैं. आई हर्ट माई सेल्फ. अब ये एक एक्शन है कि मैंने खुद को मतलब हर्ट किया, ज़ख्मी किया मैंने खुद ने. ठीक है, अब द नेक्स्ट एग्जांपल ही सा हिमसेल्फ, शी बॉट द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी एक्शन हैं वो हर कोई अपने एक्शन के बारे में बता रहा है कि अब आपको इन शॉर्ट कि जो भी अपने एक्शंस के बारे में बताते हैं वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं एज अ सेल्फ का वर्ड यूज़ करके. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टाइप ऑफ प्रोनाउन which is reciprocal. Basically reciprocal mean when you are having a mutual relationship. मतलब आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है और एक्शन कि कोई काम है बिटवीन टू मोर सब्जेक्ट का मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में. अब जिस तरह इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं जॉन एंड मैरी लव ईच अदर. अब जॉन जो है वो अलग है, मैरी अलग है. ठीक है, ईच अदर. अब यहाँ पर ईच अदर का वर्ड जो है वो रेसिप्रोकल के तौर पे यूज़ हुआ है बिकॉज एक दूसरे को. ठीक है, वन अनदर, द स्टूडेंट हेल्प वन अनदर विद द प्रोजेक्ट. अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है लेकिन बाकी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है वो एक्शन है लेकिन ज़्यादा लोगों में है.
ठीक है, तो रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का रिलेशनशिप को शो करता है। तो जो वर्ड्स वन अनदर, ईच अदर, इन वर्ड्स को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के तौर पे जानते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।